Hello everyone, this is sum number 8 from our sheet. Now see a different type of problem because last week में हमने नॉर्मल पैराग्राफ टाइप के प्रॉब्लम देखे थे. ये वीक में हम लोग रिकंसिलिएशन के जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे. ये वाले प्रॉब्लम में इन दिस प्रॉब्लम देयर आर 3 स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस. The second step is preparing a cost sheet, and the third step is preparing a reconciliation statement. That means directly we are not supposed to prepare a reconciliation statement. We are supposed to prepare a profit and loss, then a cost sheet, then we are supposed to reconcile the both. Now I am reading the question. The following data is available from the financial accounts of a firm. फाइनेंशियल मींस प्रॉफिट एंड लॉस. अरे बराबर है ना. तो एक फर्म के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में से ये सारा डेटा लिया गया है. ओके, तो वो हम लोग रीड करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत आसान काम है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ही करना है, कोई फॉर्मेट नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चीज ऊपर आएगी, कोई चीज नीचे आएगी, कोई भी चीज कहीं भी आ सकती है. सिर्फ डेबिट क्रेडिट थर्ड क्लास से थर्ड क्लास स्टूडेंट्स को भी ये डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाएगा. चलो, मटेरियल कंज्यूम इज एन एक्सपेंस. सो टू मटेरियल कंज्यूम हाउ मच? इट इज 5,20,000. इजी. ओके. डायरेक्ट वेजेस इट्स एन एक्सपेंस. टू डायरेक्ट वेजेस दैट इज 2,40,000. ओके, आगे. Factory expense or factory overheads, it is an expense. So it is profit and loss account debit. How much? 3,60,000. मजा आ रहा है? आगे. Admin expense expense ही है. Debit सबको समझ में आएगा. 5 lakhs. आगे चलते हैं. Selling and distribution expenses. To selling and distribution expenses. How much? 9,60,000. इजी. ठीक है, आगे चलते हैं. बैड डेट्स इट इज एन एक्सपेंस. कितना? 40,000. आगे चलते हैं. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 30,000. लॉस है, डेबिट. आगे चलते हैं. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड by interest and dividend received. How much? क्रेडिट में 1,20,000. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, सेल्स यूनिट्स का कोई रिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस में कभी लिखा है क्या जिंदगी में? नहीं लिखा है. 19,20,000. आगे चलते हैं. क्लोजिंग स्टॉक दो क्वेश्चन स्टॉक है. एक तो है फिनिश गुड्स का, एक तो है वर्क इन प्रोग्रेस का. तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कैटलॉग 4 लाख. वर्क इन प्रोग्रेस नो क्लोजिंग स्टॉक. कैटलॉग 1,60,000. दैट मींस दिस अकाउंट यू हैव टू क्लोज एंड फाइंड आउट विथ योर कैलकुलेटर. डेबिट ज्यादा है तो इधर लॉस, क्रेडिट ज्यादा है तो इधर प्रॉफिट. ओके, डेबिट ज्यादा है 26,50,000. 26,50,000 तो इधर आएगा लॉस. इसको बोलेंगे बाय नेट लॉस. करंट गेट लॉस. कैट लो 50,000. ओके. माय सेकंड स्टेप इज प्रिपेयरिंग ऑफ कॉस्ट शीट. Now preparing cost sheet is very simple. Already we know the format. Now I am not writing the format. You must write the format and then fill in the blanks. Okay? So I am doing it directly. When you prepare a cost sheet, what to find? What to write on the top? You have to write cost sheet for the year ended, whatever is given here, and in the bracket you have to write unit produced and unit sold. अरे बरोबर छे. When unit produced and unit sold is not given, you are supposed to find it out. Then only you can start. So I'll write unit produced and unit sold. Now unit produced and unit sold will be given in the question. Sales दिया हुआ है 1,20,000 units. That means unit sold is given. Okay. And क्लोजिंग स्टॉक में 40,000 यूनिट्स दिया हुआ है. दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन. तो चलो, ओपनिंग स्टॉक
add produce less closing stock is equal to units sold. If you remember the formula, opening stock is not given, produced is not given, closing stock is 40,000 no? Yes, 40,000 is equal to units sold 1,05,000. This minus goes there to plus, so it will produce will be 1,60,000. And it drops, no drops. So unit producing 1,60,000. And unit sold is 1,20,000. Okay. So let's start. The first step of preparing cost sheet is direct prime cost. Direct prime cost. So direct material. What is given? Direct material. See in the question. नीचे दिया रहेगा देखो cost का. Direct material तो 5 लाख शटर. यूनिट प्रोड्यूस 1,60,000. रेट पर यूनिट निकाल सकते हैं. अरे बराबर है. आगे डायरेक्ट वाजेस. चलो देखो कितना बोला है. नीचे तो कुछ नहीं दिया डायरेक्ट वेजेस. ऊपर क्वेश्चन में दिया है 2,40,000. 2,40,000. 1,60,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे यू गेट द आंसर. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है. तो यू विल गेट व्हाट? प्राइम कॉस्ट 1,60,000 यूनिट्स. अभी ये तुम लोग ही लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखूंगा. 7 लाख 8,10,000. कौनो तकलीफ नहीं तकलीफ. ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्वेश्चन में बोला रहेगा देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स का नीचे दिया रहेगा देखो. फैक्ट्री ओवरहेड्स वर टेकन एज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. So 20% ऑफ पीसी. प्राइम कॉस्ट का 20% इज 1,62,000. ओके. फैक्ट्री ओवरहेड्स. एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया है बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया है. ये देखो ना. Closing stock of work in progress is 1,60,000. अरे बराबर. So you will get 810 plus 162 is 9,72,000 minus 160 is 8,12,000. This will be called as factory cost. Hope this is clear. यहाँ तक clear है. ये कर सकते हैं ना तुम लोग. आगे चलते हैं. Add office and admin overheads. चलो क्या बोला है नीचे देखो. Admin expenses were taken as 4 per unit. So 1,60,000 into 4 that is 6,40,000. And you will get cost of production. What is cost of production? Cost of production will be added to this. This will be 14,52,000. Any problem? No problem. 14,52,000. Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. तो ओपनिंग स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं है, डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. यहाँ पे प्रॉब्लम है 40,000 यूनिट्स है. कितना है? 40,000. बट रेट क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा. क्लियर है? तो मिलेगा तुमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बराबर. लेकिन अब ये रेट क्या है? चलो कैलकुलेटर ले लो हाथ में. कैलकुलेटर पे जरा डिवाइड करके देखो फटाफट कितना आता है. इसको किससे डिवाइड करना है? 14,52,000 डिवाइड बाय 1,60,000. तो आएगा 9.075 इंटू 40,000. इधर आएगा 3,63,000. ओके. माइनस 14,52,000. तो इधर आएगा 10,89,000. इधर आएगा 1,20,000 डिवाइड बाय 1,20,000 9.075 आएगा. एड शेलिंग का क्या बोला है देखो ना. क्वेश्चन में दिया रहेगा सेलिंग ओवरहेड्स दिया रहेगा 1,20,000 यूनिट्स. सेलिंग ओवरहेड्स इज गिवन एज नीचे दिया है 6.5 पर यूनिट सोल्ड. 6.5 तो 1,20,000 into 6.5 that is equal to 7,08,000. So you will get cost of sales.
18,69,000 divided by 1,20,000, 15.575. Add deducting, you will get sales. प्रॉफिट देखो क्या बोला है, सेल्स क्या बोला है, नीचे लिखा रहेगा. कुछ नहीं दिया है तो सेल्स ऊपर वाला ही ले लो, सेल्स ऊपर वाला ही ले लो. कुछ नहीं दिया है ना तो सेल्स ऊपर वाला ले लो. कितना है सेल्स? 19,20,000 है, बराबर ना. 19,20,000 माइनस 18,69,000, 51,000 इज योर प्रॉफिट. कर सकते हैं डिवाइड. ओके 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 ओके, यहां तक क्लियर है? 2 स्टेप क्लियर हो गए. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू ऑल दैट द चैप्टर इज नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज नाइदर कॉस्ट शीट, it is reconciliation statement. So this statement is very important. तो समझना क्या है आज के लेक्चर में कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तुम्हारे पास और अगर एक कॉस्ट शीट है तो कैसे हम रिकंसाइल करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, जब दोनों साथ में है तो यू हैव टू चेक और यू हैव टू कीप अ बेस. दोनों में से कोई एक बेस पकड़ना पड़ेगा. Suppose we talk about a profit and loss account. So if I talk about a profit and loss account, so if I keep profit and loss account as base, so I will read the entire profit and loss account. Then I will complete the problem. So I will read the first entry of profit and loss. It is material consumed 5,20,000. It is material consumed 5,20,000. Here material consumed is 5,70,000. मतलब direct material. 5,20,000. 5,70,000. ओके, तो ये मैं कर रहा हूं, ये तुम लोग मत करो, तुमको समझाने के लिए ऐसा कट कर रहा हूं. क्लियर है? नाउ कंपेयरिंग दीज टू, क्या ये दोनों अलग अलग है? यस, ये दोनों अलग अलग है. क्या रिकंसिलिएशन हो सकता है? यस, रिकंसिलिएशन हो सकता है. हाउ द रिकंसिलिएशन इज पॉसिबल? फॉर रिकंसिलिएशन वी हैव टू स्टार्ट विद फाइनेंस प्रॉफिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट. If it is given in the problem, let's start with finance, so start with finance. If it is given in the problem, start with cost, then start with cost. But in this problem, nothing is specified. Here we are getting loss and here we are getting a profit. So better start with a profit. So I will write costing profit is how much? 51,000. कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी. So we will get financial loss. Okay, loss कितना मिलना चाहिए हमको? Loss मिलना चाहिए 50,000, 50,000. Is this clear? Okay, यहाँ तक समझ में आ गया? That means starting with costing profit and finance profit. दोनों लिख दिया. Now profit and loss में मतलब फाइनेंस में 5,20,000 था और कॉस्ट में 5,70,000 था. ज्यादा खर्चा था, ज्यादा खर्चा प्रॉफिट नीचू, ज्यादा खर्चा प्रॉफिट नीचू. मतलब ये कम, ये ज्यादा. बराबर. कहां से कहां जाना है? कॉस्ट से फाइनेंस पे जाना है. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. अरे समझ में आ रहा है? तुमको यहां से यहां जाना है तो तुमको ऐड करना पड़ेगा. नीचे से ऊंचू जाना है तो ऐड करना पड़ेगा. ऐड कितना करना पड़ेगा? डिफरेंस कितना है? 50,000 का डिफरेंस है. कितना डिफरेंस है? 50,000 का. सो आई विल राइट ऐड फर्स्ट वन. क्या है वो? मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट में ज्यादा है ना. ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट. हाउ मच? 50,000. होप दिस इज क्लियर. पहला समझ में आ गया. दूसरा करते हैं डायरेक्ट वेजेस. 2,40,000, 2,40,000. No need to reconcile. When the numbers are same, तो reconciliation का तो कोई सवाल ही नहीं है. जब numbers अलग अलग होते हैं तो reconciliation की बात आती है, नहीं तो reconciliation की बात आती नहीं है. अरे बराबर है. आगे चलते हैं. फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,60,000, 1,62,000. 3,60,000, 1,62,000. So there is a difference. यहाँ पे 3,60,000 है, यहाँ पे 1,62,000 है. चलो बराबर है. कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट. जगह नहीं है, मैं वर्किंग नोट्स रब करते जाऊंगा. कॉपी पहले ही करके ले लेना, या तो वीडियो बैक करके कॉपी कर लेना.
कॉस्टिंग में कितना है 1,62,000 है। ओके, फाइनेंस में कितना है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,60,000 है। अरे बराबर है, क्लियर है, दैट मींस डिफरेंस है। कहां से कहां जाना है, यहां से यहां जाना है, क्या करेंगे लेस करेंगे, क्या करेंगे लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे 3,60,000 माइनस 1,60,000 इज 2 लाख प्लस 2,000 इज 2,02,000। अरे बराबर ना, मतलब सॉरी 1,98,000 लेस करेंगे 1,98,000। अरे क्लियर है, 1,62,000 प्लस 38 1,98,000 लेस करेंगे। सो लेस क्या लिखूंगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट 1,98,000। अरे बराबर है, यहां तक क्लियर हो गया। मैं रब करता हूं एडमिन एक्सपेंसेस 5 लाख एंड 6,40,000 चोकड़ी चोकड़ी। चलो एडमिन एक्सपेंसेस, कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट। खर्चा है ना तो प्रॉफिट नीचे, खर्चा है तो प्रॉफिट नीचे। कॉस्टिंग में कितना है 6,40,000 है, कॉस्टिंग में कितना है 6,40,000 है। एडमिन में कितना है, मतलब इसमें कितना है 5 लाख है, 5 लाख। क्या करना है ऐड, क्या करेंगे ऐड, कितना 1,40,000 ऐड। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे एडमिन ओवरहेड्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट 1,40,000। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 9,60,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,80,000। चलो कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 9,60,000 और यहाँ पे फाइनेंस में कम है ना। अरे गड़बड़ कर दिया लगता है, कॉस्टिंग में ये 6,40,000 है और फाइनेंस में 5 लाख बराबर। तो कॉस्टिंग में ये 9,60,000 नहीं है, फाइनेंस में 9,60,000 है। कॉस्टिंग में कितना है सेलिंग ओवरहेड 7,80,000 है, 7,80,000 और यहाँ पे कितना है 9,60,000, ज्यादा है 9,60,000। अरे बराबर, क्लियर। तो क्या करेंगे लेस करेंगे, क्या करेंगे लेस करेंगे। तो 9,60,000 मतलब 8,60,000, 1,00,000 7,80,000 ना, तो 7,80,000 में 20 डालूंगा तो 8 लाख बनेगा प्लस 1,80,000 लेस करेगा, लेस करेंगे। सेकेंड क्या लिखूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट 1,80,000। अरे बराबर, ओके। तो अभी ये रब करता हूं। नेक्स्ट बैड डेट्स लॉस ऑन सेल, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है क्या यहाँ पे नहीं है, लॉस ऑन सेल है क्या यहाँ पे नहीं है, तो रिकंसाइल करना पड़ेगा। कॉस्टिंग मतलब डिफरेंस है ना, सिर्फ यही बता रहा है कि डिफरेंस है, कॉस्टिंग प्रॉफिट फाइनेंस प्रॉफिट। बैड डेट्स एंड लॉस ये क्या है खर्चे है ना, तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ है, लॉस एक्सपेंस है ना तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ है। कहां से कहां जाना है कॉस्टिंग से फाइनेंस, क्या करेंगे लेस करेंगे। क्या लिखूंगा एक्सपेंसेस टेकन इन फाइनेंस ओनली। कौन से बैड डेट्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 40,000 एंड 30,000। होप दिस इज क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आइटम interest received is given, so credit side interest received is given, but here interest received is not given, so costing profit, finance profit. Interest received is an income, उससे फाइनेंस का प्रॉफिट ऊपर गया है, लेकिन कॉस्टिंग में है क्या, वो कॉस्टिंग में नहीं है। तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्या लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड टेकन इन फाइनेंस ओनली, that is 1,20,000. okay, next sales 19,20 सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1,60,000 कुछ करने की जरूरत नहीं है।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4 लाख और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 3,63,000 लफड़ा है। तो क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। तो फाइनेंस का कितना बढ़ता है? फाइनेंस का बढ़ता है 4 लाख। कॉस्ट का कितना बढ़ता है? 3,63,000 बढ़ता है, कम बढ़ता है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट आइटम है ना, बढ़ता है। कहां से कहां जाता है? कॉस्टिंग का कितना है? 3,63,000 है, 3,63,000। अरे बराबर। और फाइनेंस का कितना है? 4 लाख है, 4 लाख है, ज्यादा है, 4 लाख है। कहां से कहां जाना है? कॉस्ट से फाइनेंस। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? कितना ऐड करेंगे? 27,000 ऐड करेंगे, बराबर ना। 7 करूंगा तो 70 होगा, 37,000 ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। फोर्थ, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंस कितना? 37,000। अरे बराबर है, क्लियर है क्या? समझ में आ गया? पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लिया ना, इसका मतलब ये सारे आइटम्स तुमने कवर कर लिए, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कवर करना है, एक एक आइटम देखना है, डिफरेंस रहेगा तो ऐड लेस करना है। कल भी ऐसे ही प्रॉब्लम कराऊंगा, आज जिसको नहीं समझ में आया कल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पूरा कट कर दिया, कैंसिल हो गया बराबर से। अभी ये ऐड करेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं नंबर्स क्या आएगा। ऐड करेंगे तो इसका नंबर आएगा 1,20,000 37 परफेक्ट, तो 50 40 करेक्ट, 3,47,000 is the total and you add, you will get 3,97,000। अरे बराबर है क्या? मतलब ये ऐड करके तुम लोग देख लो। लेस वाले का टोटल है 1,98,000 1,80,000 40 30 4,48,000 है, 4,48,000 है लेस वाले का टोटल। ऐड करो 3,98,000 आता है, माइनस 4,48,000 करो तो 50,000 का लॉस आता है। 50,000 का क्या आता है? लॉस आता है। चेक कर लो एक बार।